1,000 staff. DXN invests heavily in science and biotech research and development for the betterment of mankind in health and well-being and environmental sustainability. DXN is destined for global success and has sailed through continuous growth over the years. Owned by none other than Dato' Lim Xiao Jin, he is a trendsetter, the master of surprises, with 30 years of business excellence in multi-level marketing. DXN's primary business focus is in the marketing and distribution of Ganoderma, or commonly known as Linzi or Reishi. Listed on Bursa Malaysia in 2003 and going private in 2011. DXN is ranked as one of the top MLM companies in the world and has more than 70 branches worldwide, servicing more than 13 million registered distributors with a variety of over 200 products, distributing to more than 180 countries worldwide. The One Dragon business concept integrates our operations under our own Eco Valley for cost efficiency and economies of scale. Believing in the one world, one market concept, Dato' Lim firmly set DXN's footprint in the global marketplace. Focusing on what we do with one mind, we ensure sustainability in our core business. With the wealth from the tropical forest. The tropical climate in northern Malaysia provides the most ideal environment for Ganoderma cultivation. Dato' Lim enriches lives for the future by integrating the existing Ganoderma business to help more people get acquainted and enjoy the benefits of this miraculous herb. Freshly cut Ganoderma is processed as a raw ingredient for a myriad of products at our facility. Ganoderma is the base ingredient in the production of dietary and healthcare supplements that are in compliance with international standards. Supplements and pharmaceutical products are produced under stringent processes in the GMP Pharmaceutical Manufacturing Complex. Therapeutic Goods Administration TGA Clean Room was built for stringent international standard production processes. Headquartered in Malaysia, DXN has established 9 factories around the globe to cater to high demand and ensuring quick delivery of our product. Spirulina is a natural form of algae, believed to be one of the oldest life forms on Earth, bursting with a potent source of nutrients. Since DXN's inception, we have ventured into large-scale spirulina cultivation and processing. With DXN technology, we expanded our business to China and built a spirulina farm in Ningxia, China. With our state-of-the-art Ganoderma coffee manufacturing plant, processing, blending, and packing of DXN Ganoderma coffee is carried out under stringent quality control to produce the highest quality coffee range of products. In our mission to a healthy planet, Mother Nature has never been neglected in DXN's pursuit of success. To safeguard our environment, DXN ventured into agro-mycological forestry, integrated agro-industry, and self-sustainable eco-resources. An ecological forest management system implemented to preserve our native forests and ensuring improvement in the sustainability of our forest ecosystem. Keeping abreast with current trends, DXN has established a strong advanced IT technology backbone for the global business growth. DXN has a comprehensive online shopping web. Fast, efficient supply chain management enable fast turnaround and on-time delivery for our distributors and agents around the globe. DXN products are exported worldwide via air cargo for quick turnaround. Besides healthcare products, DXN believes in rejuvenation of the body, mind, and spirit. DXN Cyberville is a health recovery and rejuvenation center with 150 Soho suite rooms. For a healthy mind, head over to Boulder Valley Glamping in Penang, an ecotourism center owned by DXN for a retreat that will rejuvenate, invigorate, and bring you closer to nature. For some fun in the sun, DXN welcomes you to its floating paradise, My Adventure Cruise, Chenang Water Sports, and Pulau Beras Basah in Langkawi.
Seeing is believing. Global achievement in health, wealth, and happiness. DXN is synonymous with health. DXN produces healthcare products of the highest quality for the global market. DXN has improved lives around the world with our high income making model and a business philosophy that has given our members greater financial independence. DXN, one world, one market. डीएक्सन गुड मॉर्निंग। मैं जानिसार असगर एक बार फिर आप सभी को यहाँ जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दिवाली के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको दिवाली का। और ये जो अक्टूबर का महीना है, हमारे साथ दिवाली भी है और साथ में क्लोजिंग भी है। तो हम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस दिवाली को एक सुपर दिवाली में कन्वर्ट करें। और उसके लिए हमारे पास कुछ ही समय अब शेष रह जाते हैं। आज का दिन और कल का भी दिन हमारे पास ये शेष है, तो हमें दिवाली भी पूरे जबरदस्त तरीके से मनानी है और साथ में अपना जो व्यवसाय है उसको भी सही तरीके से करना है। और ये मेक श्योर करना है कि हमारा और हमारे टीम का किसी का भी जो पीवी है वो पीवी क्वालिफिकेशन का वो छूटे नहीं, और हम लोग हर एक चीज क्वालिफाई करें और उस स्ट्रैटेजी पे काम करें जिस स्ट्रैटेजी को लेकर के हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये जो मीटिंग है ये काफी महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाला है। एक उद्यमी को किस तरह से काम करना चाहिए इसके बारे में आज बहुत एक एक पूरा वर्कशॉप है आज। तो उसको लेकर के आप जितने भी कॉन्टैक्ट्स में हैं आपके और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में आप जल्दी से जल्दी ये मैसेज ये लिंक जरूर दे दें और सभी को यहाँ पर आमंत्रित करें। क्योंकि जैसे ही ये मीटिंग स्टार्ट होगी उसके बाद से फिर जो चीजें रह जाएंगी तो फिर उन्हें फिर वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी ये मीटिंग के लिंक्स जरूर शेयर करें। और मैं आप लोगों को मीटिंग में जाने से पहले थोड़ा सा अपडेट अपने जो हमारा प्रमोशन चल रहा है उसके लिए भी मैं जरूर दूंगा आपको। क्योंकि ये जो कुछ पीवी आपके अभी छूट रहे हैं या फिर अगर छूटे हुए हैं या फिर क्वालिफिकेशन में कहीं पर अभी इनकम्प्लीट है वो, तो फिर आप लोग उसको भी देख सके। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो प्रमोशन है ये प्रमोशन ए है और प्रमोशन बी है। ठीक है, एक्चुअली जो प्रमोशन बी है यानी कि 20,000 पीजीपीवी हम सभी की कल के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बिजनेस को और बड़े से बड़ा हम बना सकें। तो उसके लिए 20,000 पीजीपीवी हमें मेक श्योर करना है और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा उस चीज को डुप्लीकेट कराना है। और ये चीज 20,000 पीजीपीवी कैसे होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करेंगे, अपने साथ अपनी टीम की संख्या को और ज्यादा बड़ा बनाएंगे और विशालकाय बनाएंगे, तभी वो होगा। और इसके लिए कंपनी ने आपको एक सपोर्ट दे रखा है और वो सपोर्ट है कि न्यू ज्वाइनिंग के लिए भी आपको कुछ प्रमोशन में कुछ ऑफर में आपको गिफ्ट मिल रहे हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रमोशन A1। वो है न्यू मेंबर कैटेगरी के लिए। ऐसे मेंबर जिनकी ज्वाइनिंग 1 अगस्त से लेकर और आपका दिसंबर तक जिनकी ज्वाइनिंग होती रहेगी उसको सिस्टम न्यू मेंबर के कैटेगरी में मानेगा। और वैसे मेंबर जो सितंबर महीने तक एक्सपायरी कंडीशन में था यानी कि वो इनएक्टिव था कोड, आप उनको भी अगर एक्टिवेट करते हैं अक्टूबर महीने में तो आपको वो भी एक प्रमोशन A1 के कैटेगरी में आएंगे। और उनके लिए एक शानदार एक बहुत इजी एक प्रमोशन रखा हुआ है कि अगर वो सिर्फ 1500 पर्सनल पीवी करेंगे तो उनको एक स्पिरुलिना का 120 का बॉटल फ्री में उनको मिल जाएगा। और यदि
वो 3,000 पर्सनल पीवी इस अक्टूबर महीने में करते हैं, 3,000 पर्सनल पीवी, तो फिर उन्हें एक नहीं बल्कि उसकी जगह पे उनको 3 छोटे स्पिरुलिना के बॉटल उनको मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। और ये मल्टीपल कैश बिल इसमें अलाउड है, यानी कि अगर आपने 1500 पीवी किया है और आपने सिर्फ एक गिफ्ट के लिए अभी तक क्लेम किया हुआ है, तो आप आज 1500 पीवी कर लेंगे तो आपका जो है वो एक से बढ़ करके 3 हो जाएगा। तो मल्टीपल कैश बिल अलाउड है, उसको लेकर के आप इसको जरूर कीजिए, जल्दी से जल्दी इसका क्वालिफिकेशन कीजिए। साथ में और भी जो प्रमोशंस के और भी जो फायदे हैं वो आपको बाद में भी बताई जाएगी, लेकिन जो अक्टूबर महीने के लिए जरूरी है वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जिनका स्टेटस अभी स्टार एजेंट है लेकिन अगस्त से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हुई है और वो स्टार एजेंट नहीं बने हैं अभी तक, उनके लिए है 3,000 पर्सनल पीवी। यदि वो इस अक्टूबर महीने में 3,000 पर्सनल पीवी नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी 3,000 या उससे ऊपर का जरूर पर्सनल पीवी कर लें। उसमें क्या होगा, उन्हें बड़ा वाला स्पिरुलिना का बोतल उन्हें फ्री में मिल जाएगा। और यदि आप स्टार एजेंट हैं या स्टार एजेंट से ऊपर के स्टेटस पे हैं, तो फिर आपको अक्टूबर महीने में 5,000 पर्सनल पीवी आपको कर लेना चाहिए। यदि आपका 5,000 पर्सनल पीवी अभी नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी इस 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इसको जरूर कर लीजिए और बड़ा वाला स्पिरुलिना के आप हकदार हो जाएंगे, 5,000 से ऊपर आप यदि करते हैं तो। और इस बात को जरूर देखें कि प्रमोशन बी जो है ना, वो प्रमोशन बी उसी के लिए ये सभी आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि ये प्रमोशन बी में आपको 20,000 पीजीपीवी करना है और ये 20,000 पीजीपीवी के साथ अपना कम से कम 3,000 या 5,000 पर्सनल पीवी करना है ना। तो और इसके साथ आपको टीम में भी कराना है। इसमें प्रमोशन बी में आपको क्या मिल रहा है, एक पहली बार इस तरह का प्रमोशन है कि इसमें आपके बोनस में ही आपका इंक्लूड होकर के आने वाला है। अगर आप 3,000 मिनिमम अगर अपना पर्सनल पीवी मेंटेन करते हैं और 20,000 पीजीपीवी यदि मेंटेन करते हैं, तो आपका 1,000 का बोनस के साथ आपका 1,000 रुपया का कैश भी आपको वहां पर फ्री में मिल रहा है। और साथ में यदि आपकी टीम में और भी ऐसे 20,000 पीजीपीवी करने वाले और 3,000 पर्सनल पीवी के साथ मेंटेन करते हैं, तो फिर उनको तो 1,000 मिलेगा ही, और साथ में चूंकि आपके टीम में है वो, तो आपको भी वहां से 500 का एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना है कि इसमें क्वालिफायर कट ऑफ भी रहेगा। यदि उसके ऊपर कोई दूसरा अपलाइन है आपके डाउनलाइन का, तो वहां पर कट ऑफ भी लगेगा। तो इस चीज को आपको क्वालिफायर कट ऑफ हमेशा रहता है, तो उस तरह से क्वालिफायर कट ऑफ भी रहेगा। लेकिन आपकी टीम में ये चीज बहुत ज्यादा आपको प्रोपेगेट करना है और बहुत ज्यादा लोगों को लेकर के आना है, ताकि आपकी टीम विशाल बन सके और बहुत बड़ा वॉल्यूम वहां से निकल सके। सो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग इस चीज को देखें। अक्टूबर महीने में जो आपका है क्लोजिंग का समय, इसको बहुत अच्छा क्लोजिंग आप बनाइए और दिवाली को सुपर दिवाली में आप कन्वर्ट कीजिए। इसी के लिए हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं रहेंगी। अब मैं वापस आता हूं आपको आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको लेकर के। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये काफी स्पेशल है हम सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो चीज सीखने वाले हैं कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन के तौर पे एक बिजनेसमैन कैसा होता है, उसके सोचने का तरीका क्या होता है, उसका नजरिया क्या होता है और वो किस दिशा में उसको काम करना होता है, वो सब चीजों पे आज यहाँ पर चर्चा होगी, यहाँ पर बात होगी। और यहाँ पर जो हमारे साथ और ये ट्रेनिंग आप लोगों को देने के लिए जो यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं, वो एक बहुत ही नेटवर्क मार्केटिंग के एक अनुभवी स्पीकर हैं और एक लीडरशिप कैरेक्टर उनके अंदर ऑलरेडी है, और एक बहुत ही मेहनती और जुझारू उस तरह के ट्रेनर हैं आपके बीच में। और मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करूंगा। उनका नाम श्री वेद प्रकाश जी हैं और उनका जो स्टेटस है वो है सीनियर मार्केटिंग मैनेजर का। वो एक सीनियर मैनेजर भी है मैनेजमेंट में, और उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हैं। तो आज हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप
एकदम से अपने आप को रेडी कर लें। अगर आपके पास कुछ नोट्स है तो वो नोट्स भी आप जरूर रखेंगे, और कहीं भी आप इधर उधर फोकस अपना नहीं हटाएंगे। ये जरूर मेरे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आज आपको बहुत सारा चीज मिलने वाला है। और साथ ही मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप जल्दी से जल्दी और लोगों को भी आप ज्वाइन के लिए ये लिंक जरूर भेजें, ताकि इससे आपको और आपकी टीम को बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। सो थैंक यू सो मच, एंड वेलकम हियर वेद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यहाँ पे। और हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, और विश यू हैप्पी एंड प्रोस्पेरस दिवाली। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच जानिसार जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे जितने भी भाई बहन, जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, छोटे बड़े जितने भी हमारे साथ बने हुए हैं, उन सभी लोगों को भी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद और आशा करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी आए, और आप लगातार मेहनत करें, लगातार काम करें। और अगर आज की ये दिवाली आपको लगता है कि सही नहीं है, तो हो सकता है कि एक साल बाद जो दिवाली आएगी वो आपकी बहुत ही बेहतर होगी। और ये सब चीजें आपके साथ पॉसिबल हैं जब आप बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है बहुत सारी चीजें जो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो आज मुझे बात करने का मौका मिला है आप लोगों के साथ में, और मैं अगले 40 मिनट आपके साथ बन रहा रहूंगा इस मीटिंग के अंदर। अगले 40 मिनट में हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या हमें करना है। तो दिवाली के मौके पे ये बात करने का मौका मिला है। जाने सर जी बता रहे थे बहुत सारी चीजें, जिनमें उन्होंने एक ऑफर बताया कि किस तरह से ग्रैंड क्लोजिंग में आपको फायदे हैं। और मैं, हमारे साथ में बहुत सारे स्टॉकिस्ट भी बने होंगे, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपके लिए भी एक ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो आप भी, जितने भी हमारे स्टॉकिस्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एक पिलर का काम करते हैं, एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं इस बिजनेस में। तो आप लोगों के लिए भी दिवाली का ऑफर दिया हुआ है। तो कोशिश करिए कि आप अपने स्टॉक पॉइंट पे आने वाले अपनी टीम के लोगों को सबसे ज्यादा बताइए कि जो ये ग्रैंड क्लोजिंग ऑफर है इसके क्या क्या फायदे हैं, और उनको करवाइए। और उसको करवाते करवाते कब आपका टारगेट पूरा हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और हम हमेशा कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि आप अपनी चिंता छोड़ दीजिए, आप टीम के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करिए। जब आप टीम के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि कब आपने कौन सा लेवल कंप्लीट कर लिया, और आपकी इनकम, जो कहते हैं ना फर्स्ट से अर्श तक पहुंच जाना, कब ये पहुंच जाएगी इसका भी आपको पता नहीं चलेगा। तो आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए कि इस बिजनेस में किस तरह से काम किया जाता है, और किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग में जीरो टू क्राउन तक का सफर तय किया जाता है। तो ये जो जीरो से क्राउन तक का सफर तय करने के लिए अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले ज्यादा जरूरी है क्या चीजें जो हमें जानने की जरूरत है, कि हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी सोच बिजनेसमैन जैसी है या नहीं है, हमारे एक्शन बिजनेसमैन जैसे हैं या नहीं है। कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करते और आपको लगता है कि आपको बड़ा आदमी बनना है, तो आप कुछ मत करिए, एक साल, कम से कम एक साल उन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दीजिए जो महीने में 2, 5, 10 लाख रुपए कमाते हैं। क्या करना है, एक साल उन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दीजिए जो महीने में 2, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाते हैं। और होगा क्या, जब आप उन लोगों के साथ बैठना शुरू करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि संगत का असर तो दिखाई देता है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब आप ये करेंगे तो होगा क्या कि 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आप मेच्योर हो रहे हैं, आपका माइंड मेच्योर हो रहा है, और कहीं ना कहीं जहां पे आप गए थे इनकम करने के लिए, वहां पे इनकम भी आपने करना स्टार्ट कर दिया। और एक छोटी मोटी इनकम नहीं, एक बहुत अच्छी और बेहतर इनकम आप करना शुरू कर दिए। तो इसलिए कहते हैं सोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके एक्शंस में वो चीज दिखाई देना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरा एक पेट है, मैं हमेशा बोलता हूं कि पैर की नोच और छोटी सोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी सोच कैसी है और हम किस तरह से काम करना चाहते हैं। आज दिवाली का दिन है, लक्ष्मी जी की सब लोग पूजा करेंगे, और लक्ष्मी जी को अपने निवास पे बुलाना सब पसंद करेंगे, और चाहेंगे कि लक्ष्मी जी उनके घर में हमेशा रहे, उनके पर्स में, उनके वॉलेट में हमेशा रहे। तो इसके लिए अगले कुछ समय में कुछ बातें हम लोग करेंगे, वो बातों पे आपको फोकस करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूंगा।
स्क्रीन दिखाई दे रही है होस्ट? जी सर, Yes, देख sir. लेंगे। ओके, तो ये जो है हमारा, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है न्यू एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप्स, यानी कि जो लोग हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ रहे हैं, दो तरीके से लोग हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ते हैं। कुछ लोग जुड़ते हैं जो प्रोडक्ट खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपनी किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ आते हैं, और उन्हें जब ये बताया जाता है तो उन्हें लगता है कि इस प्रोडक्ट से मुझे फायदा मिलेगा, और वो प्रोडक्ट का सेवन शुरू करते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट का सेवन शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद उनके जो शरीर है उसमें अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं, और उन्हें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, और वो ये बन जाते हैं हमारे साथ इस कंपनी में कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं, मैं उनसे हमेशा अपील करूंगा कि अगर आपको प्रोडक्ट से फायदे मिल रहे हैं, आप रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो इन प्रोडक्ट्स का जो मैसेज है वो दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है। आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल में पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस चीज से आपको फायदा मिलता है शायद इस चीज की जरूरत और लोगों को भी है, लेकिन जानकारी के अभाव में ये चीज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको लोगों को जानकारी देनी है, और ये जानकारी देते समय आप एक नेक काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी से कोई आदमी जूझ रहा है, और वो कोशिश ये कर रहा है, भगवान से दुआ कर रहा है कि कहीं से कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे उसको स्वास्थ्य में बेहतर हो जाए। तो ये बेहतरी का काम आप वो एक संदेश वाहक की तरह उन तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आपने खाया, आपको कैसे लगा और दूसरे लोगों को कैसे लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंज्यूमर का एक अच्छा खासा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं बहुत सारे लोग जो आर्थिक तंगी से परेशान होते हैं, यानी कि आर्थिक तंगी क्या है, जिस प्रकार से बहुत सारे लोग, अगर आप देखा होगा कि नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के बावजूद पैसा आ रहा है, लेकिन नौकरी करने के बाद वो संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि जितनी आय उनको चाहिए अपने परिवार को चलाने के लिए, शायद वो आय उनको हासिल वहां से नहीं हो पा रही। तो हमेशा एक ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि कहीं से कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे उनके घर में और थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हो जाएं, और जो आर्थिक तंगी है उससे वो बाहर निकल सके। और जो कहते हैं ना कि सेविंग्स करना, शायद हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा भी सेव करना शुरू कर दे। तो इसके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ एक रास्ता ढूंढते हैं, और वो रास्ता दिखाने के लिए आप माध्यम बनेंगे, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को मिलते हैं तो उन्हें बताते हैं, तो वो हमारे साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, और बिजनेस में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ काम करना शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं जीरो से क्राउन एम्बेसडर तक का सफर वो तय करते हैं। जो एक अच्छी आय का सपना लेके आए थे, वो आय यहाँ से प्राप्त करते हैं। क्योंकि पिछले 30 सालों में अगर आप देखें तो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों में डीएक्सन के इस बिजनेस प्लान के साथ काम करके लोगों ने अपनी आर्थिक तंगी को खत्म किया है, और आज पूरी तरह से आर्थिक आजाद है। यानी कि अगर उन्हें कभी भी कोई भी सामान चाहिए, कुछ भी परचेज करना है, तो वो कभी टैग को नहीं देखते, वो सीधा डायरेक्टली परचेज करते हैं। और इस बिजनेस और व्यापार के माध्यम से लोगों ने अपने माँ बाप के सपने पूरे करे हैं, अपने घर में बीवी बच्चों के सपने पूरे करे हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बच्चों की शादी करनी है, किसी को एजुकेशन करना है। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने की हैं, और ये वो लोग हैं जो आपको अपनी सक्सेस स्टोरी में भी बताते हैं कि वो जब डीएक्सन में आए तो उनके हालात क्या थे, और उसके बाद उन्हें किसी ने डीएक्सन के बारे में बताया, उन्होंने विश्वास करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और उसके बाद आज उनकी जिंदगी में बदलाव है। तो ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो डीएक्सन में बिजनेस करना चाहते हैं, आर्थिक आजादी लेना चाहते हैं, अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहते हैं। तो ये सब उन्हीं के लिए है कि डीएक्सन में जब आप आ तो गए हैं, आज आपने फॉर्म भर दिया, आज आपने स्टार्टिंग कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या क्या काम आपको करने चाहिए जो आपको अगले 2-3 साल लगातार करते रहना चाहिए, जो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये एक चीज आप देख सकते हैं, आपकी स्लाइड पे है, स्क्रीन पे है। हर बिजनेस को करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। आप ये ध्यान रखिए, आपकी एक लिमिट होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए लिमिट होती है, और उस लिमिट को अगर बढ़ाना हो तो उसके लिए कुछ और एड ऑन करना पड़ता है। जैसे बैंक में अगर आपका पैसा की आपने एक लिमिट लगाई हुई है कि आप 50,000 से ज्यादा ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट है, तो फिर बैंक से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बैंक एड ऑन करता है, बैंक उसकी लिमिट को बढ़ाता है, तब जाके आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो किसी ना किसी आय से आते हैं, किसी ना किसी कारण से आते हैं। तो जहां पे भी आप काम कर रहे थे, वहां पे जो आय मिल रही थी वो आपकी एक लिमिट के अनुसार थी, कि यानी जितना आपको पता है उसके मुताबिक आप काम कर रहे थे और पैसा आपको मिल रहा था।
लेकिन आपको पैसा ज्यादा चाहिए। मान लीजिए आज किसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे 20 से 30 हजार रुपये आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं लाख रुपए कमाना, तो आपको उनसे सीखना पड़ेगा जो लाख रुपया इस इंडस्ट्री में कमा रहे हैं। उनसे कही हुई बातों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप सीख पाएंगे कि लाख रुपया कैसा आता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेनिंग और एजुकेशन। अगर ट्रेनिंग और एजुकेशन ये दो चीजें आप लगातार लेते रहेंगे, बार बार लेते रहेंगे, तो आपकी जो लिमिट है वो बढ़ती रहेगी, आपका जो नॉलेज का लेवल है वो बढ़ता रहेगा, और इन सारी चीजों से आप खुद भी फायदा लेंगे और इसको डुप्लीकेट कराएंगे अपनी टीम के अंदर। जब आप अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट कराते हैं तो वहां पे वो लोग भी इसका फायदा लेना शुरू करते हैं, और इन नंबर ऑफ पीपल्स आपके जब ट्रेनिंग्स लेते हैं तो आपके नीचे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खड़ा हो जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपकी जो लिमिट होती है उसको बहुत लेवल तक आगे तक बढ़ा देता है। कई बार लोगों ने कहा है कि सर हमारी तो ये सीमा ही नहीं थी। हमेशा ये होता है कि कोई भी ऐसी असंभव चीज जो आपको दिख रही है कि आपसे नहीं हो पाएगी, तो उसको अगर आप सिस्टम से प्लग इन कर देंगे तो वो चीज आप तक आराम से पहुंच जाएगी। तो सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि विदाउट सिस्टम अगर लोग चलते हैं तो किस प्रकार से होता है। लोग कहते तो हैं कि सर हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, हम पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन एक्टिविटीज आप कर रहे हो, लेकिन अगर सिस्टम के साथ नहीं कर रहे हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिस्टम को समझना और सिस्टम के साथ एक्टिविटी करना। और सिस्टम क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि एक शख्स है, वो समझा रहा है उनको कि अगर इस गाड़ी में दोनों पहिए लगा लोगे तो आसानी से आप ले जाओगे, इसमें खींचने का, इतना दम लगाने का, इतना बल लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वी आर टू बिजी, थैंक यू, आपकी सलाह की हमें जरूरत नहीं है। और ये बिजनेस में भी होता है, जब अपलाइन बोलती है डाउनलाइन को कि आप सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम से चलिए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कहीं से आए हैं, हम वहां से आए हैं, हम यहाँ से आए हैं, वी नो द सिस्टम, ठीक है, तो हम अपने ही सिस्टम से चलेंगे। तो उन लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप अपने सिस्टम से चलेंगे तो उतना ही कमा पाएंगे जितना आज तक आप कमा पा रहे हैं। लेकिन वो जो इनकम है उसको अगर आपको डबल करना है तो फिर आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा। जितने ट्रेनिंग एजुकेशन में आपको जितने भी स्पीकर्स या ट्रेनर्स सिखाते हैं वो आपको सीख के इंप्लीमेंट करना होगा, तब जाके आपकी इनकम की लिमिट बढ़ेगी। लेकिन अगर आप ये चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो लिमिट उतनी रहेगी, आप उतने में ही रह पाएंगे। तो कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए और आगे जाने के लिए आपको सीखना और सिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी हमेशा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग आइए और सीखिए, और ये सीखने के बाद में अपने लोगों को सिखाइए। हम हमेशा क्या करते हैं, एक बंच ऑफ पीपल्स, यानी कि छोटे एक लेवल पे हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे 100-200 लोग आए, उनको हमने सिखाया। और हम ये चाहते हैं कि हम 2000-5000 लोगों को एक साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, उतना अच्छे से माइंड में नहीं जा सकते, लेकिन आप लोग आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इन प्रोग्राम में आते हैं, पहले खुद सीखते हैं और फिर जाकर अपनी टीम में सिखाते हैं। तो एक मल्टीप्लिकेशन का दौर शुरू होता है, जहां पे हम लोग कहते हैं ना, मल्टी लेवल इनकम्स आपको मिलती है। आप नीचे नीचे जाते हैं, अगर डेवलपमेंट बोनस की बात करूं तो आपको कितने लेवल पे मिलता है, लीडरशिप बोनस। तो ये सारी चीजें जब हम डेवलप करते हैं अपनी टीम के अंदर तो हर लेवल पे आपको फायदा मिलता है। तो ये सिस्टम को फॉलो करिए, इस तरह से मत करिए जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये करेंगे तो मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी और मंजिल पर पहुंचने में आपको काफी समय लग जाएगा। तो मंजिल पे समय से तक पहुंचना है, इनकम अच्छी करनी है और कम समय में करनी है, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, ये इसलिए है ताकि आप अपने बिजनेस को प्रोफेशनली तरीके से बिल्ड कर सकें। एक रोड मैप हम आपको दे सके कि ये रोड मैप है, यहां से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपको एंड करना है। जब आपको पता है कि कहां से स्टार्ट करना है और मंजिल कहाँ है, तो आप इजीली ड्राइव करके जा सकते हो, इजीली चल के जा सकते हो और आपको मंजिल आसानी से मिल जाएगी। सो ये किस लिए है, ये आपको एक रोड मैप टू सक्सेस देने के लिए है। हेल्प टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के क्या क्या फंडामेंटल्स हैं और ये किस प्रकार से काम करता है, ये सिस्टम आपको सिखाता है। तीन चीजें इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। वन इज लॉन्ग टर्म, यानी कि ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं ये पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं। नहीं, इस बिजनेस में सिखाया जाता है कि आज आप इस करेंगे और आने वाले समय में आपका बेटा इसको बिजनेस को करेगा, और हो सकता है कि उसका बेटा भी, यानी कि पीढ़ियों दर पीढ़ी चलने वाला ये बिजनेस है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। ठीक है, दूसरा ये डुप्लीकेबल बिजनेस है, जैसा आप करते हैं वैसा ही दूसरों को करना है। तो इट इज वेरी इजी टू कॉपी। अगर आपने देखा होगा, लोग जब एग्जाम्स होते थे तो लोग कॉपी करते थे एक दूसरे को, कि कोई भी जैसे हमेशा ये होता था कि क्लास में जीनियस बच्चा है
तो लोग उसके पीछे बैठना पसंद करते थे ताकि उसकी शीट लेके वो कॉपी कर सके। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा है कि नकल तो कर सकते हैं, लेकिन नकल के साथ थोड़ा सा अकल भी ज्यादा जरूरी है, राइट। तो नकल और अकल के साथ एक डुप्लीकेबल कर सकते हैं, और ये दोनों चीजें अगर आपकी सही होती है तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। मतलब लंबे समय तक करना है, लोगों को डुप्लीकेट कराना है और इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। अगर आप अपने जैसे लोगों को बना सके इस बिजनेस में, अगर आज आपकी आय है 5 लाख रुपए, तो आप महीने के 5 लाख रुपए लोगों को कमाना सिखाएंगे, तो वो बिजनेस आपके लोग आपके बिजनेस में रिटेन करेंगे। और जब लोग आपके बिजनेस में रिटेन करेंगे, मान लीजिए आज 2 लोग हैं, दो लोगों ने 10-10 लोगों को ट्रेनिंग दिया, तो उनकी संख्या बढ़ेगी। फिर उन लोगों ने 10-10 लोगों को ट्रेनिंग दिया, तो फिर संख्या बढ़ेगी। इस तरह से आपका संख्या बल बढ़ता जाएगा, पीवी बढ़ते जाएंगे, और जब संख्या बल बढ़ता जाएगा, पीवी बढ़ते जाएंगे, तो आपका जो बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, लॉन्ग टर्म डुप्लीकेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ एजुकेशन, यानी कि जब आप कंपनी के सिस्टम को चूज करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि सारी चीजें यूनिफॉर्म होंगी, हर आदमी एक सुर में बात कर रहा होगा, एक ही तरीके से बात कर रहा होगा। और ये कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ एजुकेशन का आपकी टीम में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये लगातार 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 निरंतर प्रयास होता रहेगा एजुकेशन का, तो ये एक दिन बड़े रिजल्ट देगा। क्योंकि कहते हैं कि कंसिस्टेंसी आपको बड़े रिजल्ट देती है। जिस प्रकार से पानी की एक बूंद लगातार किसी पत्थर पे भी पड़ती रहे, तो वो पत्थर के अंदर भी छेद कर सकती है। तो अगर आपका ये कंसिस्टेंट फ्लो रहा एजुकेशन का, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप जरूर सफल हो जाएंगे, और इसी एजुकेशन के साथ आप अपनी टीम के लोगों को भी सफल बना पाएंगे। 4 पिलर ऑफ सक्सेस, यहाँ पे 4 पिलर की हम लोग बात करें, तो सबसे पहला वो शख्स है जिसने आपको इस बिजनेस में इन्वाइट किया, यानी कि जो बिजनेस में लेके आया, और उसे आप बोलते हैं अपलाइन। कहते हैं कि भगवान के बाद, माँ बाप के बाद, भगवान और माँ बाप के बाद कोई अगर तीसरा आदमी है, तो वो है आपका अपलाइन, जो आपके बारे में बेहतर सोचता है, जो आपके लिए सोचता है कि आप सफल हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान बने। तो इसके लिए आपकी अपलाइन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मतलब भरी दुनिया में अगर आप देखें तो कोई किसी का नहीं है, हर आदमी सेल्फिश है। लेकिन यहाँ पे एक आपकी अपलाइन है, जिन्होंने क्या किया, एक अच्छा काम किया कि आपको इस बिजनेस में लेके आए, और इस बिजनेस में लाके उन्होंने एक बात बताई कि दोस्त, मैं भी इस बिजनेस से पैसा कमा रहा हूं, और आप भी इस तरीके से बिजनेस को करेंगे तो इसमें पैसा कमा लेंगे। दूसरे शख्स होते हैं आप, जो खुद इसमें एक डिसीजन लेके आए कि आपको करना क्या है। उसके बाद में आ जाता है आपका प्लान, ठीक है। प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी के लिए हो, हर इंसान के लिए हो, हर इंसान के लिए हो। एक, हाँ, तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो हर इंसान के लिए हो, कोई भी इंसान उसको कर सके। और डीएक्शन का अगर हम लोग बात करें, तो डीएक्शन का बेहतरीन प्लान है। इस प्लान को अगर आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, प्लान के ऊपर प्रेजेंटेशंस को सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये प्लान ऐसा है कि कोई भी आदमी इसको आसानी से कर सकता है। एक पढ़ा लिखा इंसान भी इसको कर सकता है, और एक जो पढ़ा लिखा कम है वो भी इसको आसानी से कर सकता है। और चौथी चीज आ जाती है हमारा प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के बारे में कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, और प्रोडक्ट खिला के लोगों को आपने बहुत बेहतरीन कंज्यूमर बनाया है, और प्रोडक्ट खिला खिला के लोगों को उनकी समस्याओं से भी बाहर निकाला है। तो वर्ल्ड वाइड अगर आज हम लोग बात करें, तो डीएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में सबको जानकारी है, और इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि सामने वाले को प्रोडक्ट खिलाना है, और उससे सिर्फ पूछना है, राइट। कहीं भी जाए आप कॉफी लेके जाइए, कहीं भी जाए आप कोम्बुचा लेके जाइए, कहीं भी जाए आप एलोविटा लेके जाइए, कहीं भी जाए आप लेमन जी लेके जाइए, पानी लीजिए और उसके अंदर मिला के उनको टेस्ट कराइए। मैं कहता हूं 100% सामने वाला बिजनेस ज्वाइन ना करे, लेकिन आपका कंज्यूमर जरूर बनेगा। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। अब आता हूं मैं अगली चीज पे। तो ये है हमारे 10 बेसिक्स कोर्स, जो बिगनर्स को सक्सीड करने में मदद करते हैं, यानी कि सफलता तक ले जाने में मदद करते हैं। इसमें पहला स्टेप आता है जिसे हम लोग कहते हैं डिफाइन द ड्रीम्स, और इसके नीचे अगर आप देखें वर्क ऑन योरसेल्फ, यानी कि ये जो चीजें अभी मैं बता रहा हूं, ये आपको अपने आप से शुरू करने की जरूरत है, यानी कि लिखने की जरूरत है। डिफाइन द ड्रीम्स का मतलब क्या होता है? डिफाइन द ड्रीम्स का मतलब
कि एक सोच जिसको लेके आप इस बिजनेस में आए, एक सोच जिसको लेके आप इस बिजनेस में आए। क्योंकि जब किसी भी शख्स ने, कोई भी डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर ने जब आपको इसके बारे में बताया होगा, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें चली होंगी, राइट। और वो जो चीजें हैं वो आपने खुली आंखों से देखी है, और उनको पूरा करने का आपको लगा कि यहाँ पे हमारी ये सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। तो दोस्तों, सपने हम सभी लोग देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सपने किसी किसी के पूरे होते हैं। तो सपने किन के पूरे होते हैं? जो सपनों के ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर मेहनत करते हैं, और उन सपनों को जिंदा रखते हैं, जिंदा रखते हैं अपने अंदर, हमेशा उसके लिए लगातार 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 कंसिस्टेंसी प्रयास करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा ये सपना पूरा होगा। लेकिन सपने अलग अलग तरीके के लोगों के होते हैं, और कहते हैं कि सपना सपना हम किसे कहते हैं? जो बंद आंखों से देखते हैं या खुली आंखों से देखते हैं? ऑफ कोर्स हम लोग जो खुली आंखों से देखते हैं, और सपना वो कहते हैं कि जो सपना सोने ना दे, उसे हम सपना कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके के सपने होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक आदमी का एक ही तरह का सपना होता है, हर आदमी का अलग अलग तरीके का सपना होता है। कोई अच्छी गाड़ियां खरीदना चाहता है, अच्छी कारें खरीदना चाहता है, कोई अच्छा घर लेना चाहता है, किसी के पास छोटा घर है तो वो बड़ा घर लेना चाहता है। मे भी हो सकता है लोगों के पास घर हो, लेकिन उन्हें पता है कि ये छोटा है लेकिन मुझे बड़ा घर चाहिए, तो वो बड़े घर का सपना देख रहा है। कोई अपने माँ बाप को विदेश यात्रा करवाना चाहता है, या तीर्थ यात्रा करवाना चाहता है। कोई अपने बच्चों को लेकर ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है, फॉरेन टूर घूमना चाहता है। कोई अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छे स्कूल भेजना चाहता है। और किसी की ये उम्मीद और आशा होती है कि अगर मैं इस बिजनेस से पैसा कमा लूं तो अपनी बेटी और बेटे की अच्छे से शादी भी कर सकूं। तो ये बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो हमारे पास में होते हैं, लेकिन कहते हैं कि इनको विजुलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन ड्रीम्स को विजुलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तभी आप इन ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। और इसके लिए करना क्या है? एक चीज बताई गई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि किसी चीज को जब आप बार 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 देखते हैं तो वो चीज आपके बहुत जल्दी नजदीक आ जाती है। और एक शाहरुख खान की मूवी है ना, उसमें भी उन्होंने एक डायलॉग मारा है कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने में। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को लिखते हैं और उनको अपने बेडरूम में चिपकाते हैं, जहां पे आपको ये बार बार दिखाई देता है, तो आपको पता चलता है कि इसकी ताकत क्या है। क्योंकि जितना आप इसको देखेंगे ये उतना आपके नजदीक आता जाएगा। मैं कहना चाहूंगा एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर एक प्रेग्नेंट महिला होती है यानी कि गर्भवती महिला जब होती है, तो वो अपने घर के बेडरूम में, क्या करती है? एक फोटो लगाती है। और आप सभी लोगों को पता होगा वो फोटो किसकी लगाती है? किसी जानवर की नहीं लगाते, बल्कि एक अच्छे खासे गुलगुले और प्यारे से बच्चे की फोटो लगाते हैं, जिसपे नजर जाते के साथ हर इंसान के चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो जो माँ होती है वो 9 महीने तक बच्चे को अपने कैरी करती है, और वो जो कैरी करती है तो उसमें पेन बहुत होता है, डिलीवरी के समय पे पेन बहुत होता है। लेकिन इन सब चीजों में उसको हिम्मत कौन देता है? उसमें हिम्मत देता है उसका वो सपना। क्योंकि जैसे ही वो अपना घर का काम खत्म करके अपने बेडरूम में आती है, पलंग पे बैठती है, तो सामने उसको दीवार पे वो सपना उसका दिखाई देता है कि 9 महीने बाद इस तरीके का एक बच्चा उसके घर में भी जन्म लेगा। तो वो जो सामने फोटो दिखाई दे रही होती है, उससे उसे ताकत मिलती है, उससे उसे स्ट्रेंथ मिलती है कि आज नहीं तो कल ये पूरा होगा। और वही चीजें दोस्तों आपके साथ भी होंगी। आपने करना क्या है? आपने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन सबसे पहले उस सपने को उतारिए एक पेपर पे। सपने को उतारना क्या है? अगर मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है, तो सबसे पहले डिसाइड ये करिए कि आपको कौन सी कार खरीदनी है, कौन सी कंपनी की कार खरीदनी है, उसका मॉडल क्या है, राइट, उसका कलर क्या है। आप जाइए किसी भी शोरूम में, और शोरूम में जाके उस कार की टेस्ट ड्राइव लीजिए, आपको फील आएगा, आपको पता चलेगा। आपकी पूरी फैमिली को ले जाइए, उनको टच करवाइए, फील करवाइए, और उनको भी एहसास होगा कि अगर हम ये चीज लेते हैं तो इसका क्या फायदा होगा। और उसके साथ एक फोटो खिंचाइए और उस फोटो को लगा दीजिए अपने घर के बेडरूम में, जिस प्रकार से बच्चे की फोटो लगी होती है। अगर आपको घर खरीदना है, आप पहले डिसाइड करिए कौन सी सोसाइटी में आपको घर खरीदना है। उस सोसाइटी में 2 बेडरूम का खरीदना है, 3 बेडरूम का खरीदना है, 4 बेडरूम का खरीदना है। उसकी फोटो लीजिए, कौन से कलर की दीवारें होंगी, सारी चीजें लीजिए और उसको लगा दीजिए अपने घर के बेडरूम में। विदेश यात्रा करनी है, उसकी पिक्चर लगाइए। जो भी आपको कार्य करना है उसकी एक पिक्चर लगाना आपके बेडरूम में सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप ये डिसाइड करते हैं तो आप इसको फैमिली के साथ डिसाइड करिए, अकेले मत करिए। क्योंकि ये जो सपना होगा ये आपका भी होगा और आपकी फैमिली का भी होगा। जब पूरा परिवार मिलकर इस सपने पे काम करेगा
तो मैं कहता हूं कि जो काम 3 साल में होने वाला है वो शायद 1 साल में हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से एफर्ट्स लगते हैं और आपके आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल एकदम पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो सपना होगा ये आपका भी होगा, आपकी बेटी का भी होगा, आपके बेटे का भी होगा और आपकी पत्नी का भी होगा, और कहीं ना कहीं आपके माँ बाप इन्वॉल्व हुए तो उनका भी ये सपना होगा। तो सब मिलके जब काम करेंगे तो कहते हैं ना कि पूरी कायनात लग जाती है। तो आपने करना क्या है, इसको लगा देना है। जो भी चीजें मैंने बताई इसको आपने घर के बेडरूम में चिपकाइए। जब आप रात को सोए तो भी आपको दिखाई दे, और जब आप सुबह उठे तो भी आपको दिखाई दे। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप पूरा दिन काम करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके दिमाग में घर कर लेती है, कई कई बार ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको देखते हैं तो आपको ये समझ आ जाता है कि ये सपना आपका है, किसी दूसरे का नहीं है। तो कोई दूसरा क्या बोल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे बताने के लिए, और मैंने कहा बार बार उसको देखेंगे, विजुलाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी इसका काम हो जाएगा। और साथ साथ आप एक और काम कर लीजिए, इसके नीचे एक टाइमलाइन और डाल दीजिए। क्योंकि किसी भी ड्रीम के साथ अगर आप टाइमलाइन जोड़ देते हैं तो उससे भी फायदा आपको ये मिलता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आपने करना क्या है, सपोज आपने कोई भी चीज लेनी है उसके नीचे टाइम डालिए। यानी कि अगर आपको 2 साल में कोई चीज लेनी है तो 2 साल में कितने दिन होते हैं, उतने दिन टोटल दिन की एक पर्ची उसके नीचे लगा दीजिए। उसके बाद में जैसे ही दिन चेंज होता है तो उसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 800 दिन, अगर आपने माना कि ये 800 दिन में पूरा होना है, तो जैसे ही एक दिन कम हुआ आपने लिखना है 799 दिन। फिर अगले दिन क्या करना है, फिर पर्ची फाड़ देनी है 798 दिन। जैसे जैसे दिन कम होंगे आपको पता चलेगा कि आपका समय सीमा नजदीक आ रही है। हम पूरे साल नहीं पढ़ते थे लेकिन लास्ट के 2 महीने पढ़ लेते थे और उसमें ही हमारे 90+ नंबर आते थे। तो वो एक अलार्म होता था कि भैया नजदीक आ रहा है। तो अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने समय सीमा क्या बांधी है और वो समय कितना नजदीक आ रहा है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो हमें समय के साथ चलना है, और अगर हम समय के साथ चलते हैं तो हमारे जो भी काम है वो सारे के सारे बनते हैं। समय से जो लोग पीछे चलते हैं वो हमेशा लेट रह जाते हैं। राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम किस तरह से इस चीजों को समझ रहे हैं और किस तरह से इन चीजों पे आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो ड्रीम आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, सोच अगर रखनी है तो ऊंची रखो। ड्रीम आपका हमेशा बड़ा रखिए, छोटा ड्रीम मत सोचिए। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। सोच बहुत काम करती है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक शख्स से मेरे साथ में जा रहे थे, हम लोग कहीं जा रहे थे किसी से मिलने के लिए, एक दोस्त के पास जा रहे थे। तो वो दोस्त शायद ऑफिस में नहीं था, तो हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। तो जो मेरे साथ में मेरे शख्स थे वो कुछ देख रहे थे, और कुछ देखने के बाद, कुछ नोटिस करने के बाद में वहां से एक आवाज आती है। तो मैं जैसे ही फोन पे बात कर रहा था मैंने पलट के देखा, तो मैंने देखा क्या, जो मेरे साथ शख्स है वो किसी से उलझे पड़े हैं और उन्होंने उनको एक जोरदार तमाचा मार दिया है। तो जब मैं गया, मैंने फोन को बंद किया, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, आपने इनको तमाचा क्यों मारा? कह रहे सर गरीब आदमी है। मैंने कहा गरीब आदमी है? मैंने कहा वो दिखाई दे रहा है, उसकी शक्ल से पता चल रहा है गरीब आदमी है, लेकिन आपने इनको तमाचा क्यों मारा? तो कहते सर गरीब आदमी है। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा हुआ क्या? तो उन्होंने बताया कि हुआ क्या, कि वो देख रहे थे कि ये शख्स क्या कर रहा था, ऐसे हाथ में कुछ चीज को लेके ऐसे तो घुमाता और ऐसे टुकड़ा तोड़ता और मुंह में रख के मुंह को ऐसे चलाना शुरू कर देता। जब ऐसे चलाना शुरू करता तो कहता कि काफी देर तक मैं देखता रहा, और उसके बाद मुझे जब रहा नहीं गया तो मैं इनके पास आया, सज्जन के पास में, और मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब आप ये कर क्या रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया मुझे पलट के बड़े ही बेरुखे स्वर में कि दिखाई नहीं देता, खाना खा रहा हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, खाना खा रहे हो, तो खाना तो है ही नहीं, क्या खा रहे हो? क्योंकि वो खाना तो था ही नहीं, ना प्लेट थी ना कुछ था। तो उन्होंने पूछा कि क्या खा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चटनी खा रहा हूँ, चटनी के साथ रोटी खा रहा हूँ। राइट। तो जब उनसे पूछा गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है चटनी के साथ रोटी खा रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा आपके हाथ पे। तो कहता मैं सोच के खा रहा हूँ। क्या कर रहा हूं? मैं सोच के खा रहा हूं। तो जैसे ही उसने बोला मैं सोच के खा रहा हूं, तो इन सज्जन ने एक उनको रसीद कर दिया। तो कहते हैं कि अगर सोच के ही खाना है तो आप शाही पनीर क्यों नहीं खा रहे? सोच के ही खाना है तो आप काजू बादाम क्यों नहीं खा रहे? सोच के ही खाना है तो आप बटर चिकन क्यों नहीं खा रहे? सोच के ही खाना है ना भाई। तो आप ये सारी चीजें क्यों नहीं खा रहे? क्यों चटनी के साथ रोटी खा रहे हो? क्योंकि उसकी सोच छोटी थी, इसलिए वो चटनी के साथ रोटी खा रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सोचते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
इंसान पैसे बचा के बड़ा नहीं बनता, पैसा कमा के बड़ा बनता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि इंसान पैसा बचा के नहीं, पैसा कमा के बड़ा बनता है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स का जब वैल्यू देखते हैं कि इस ट्रेनिंग का वैल्यू 1000 रुपए है, ये 500 रुपए है, तो वो सोचते हैं कि इस ट्रेनिंग में जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पैसे बचा लेंगे। अपनी टीम को भी बोलते हैं कि फ्री वाली में चलेंगे और इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आपको फर्क पता चलेगा, ठीक है, जो लोग उस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, तो पैसा बचा के नहीं मेरे दोस्त, पैसा कमा के आप आगे बढ़ सकते हैं और बड़े बन सकते हैं। तो जो आपका ड्रीम है उसके ऊपर काम करिए, परिवार के साथ बैठिए आज और अभी उसको लगा दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। आज दिवाली का दिन है, छोटी दिवाली का दिन है, बहुत सारी चीजें आप घर में लाते हैं, तो उसी प्रकार से आज सोचिए कि आज एक सपने का उदय हो रहा है आपके घर में, और इस सपने को आपने अगले 1 साल के अंदर पूरा करना है। और जैसा मैंने कहा, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज, आज वो चीज आपके पास है नहीं और आपको लग रहा है वो असंभव सी है, लेकिन सिस्टम है, वो सिस्टम डीएक्सन का जो सिस्टम है, जो अपलाइन आपके साथ जो 4 चीजें मैंने बोली, ये चारों चीजें जब उसके साथ काम करेंगी तो ये असंभव सी दिखाई देने वाली चीज आपकी हो जाएगी। और हुआ यही है, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। आज अगर हम लोग महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, उनका एक बड़ा नाम है। आज अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करें, वो एक बड़ा नाम है। बिल गेट्स की बात करें, स्टीव वॉक की बात करें, राइट ब्रदर्स की बात करें, थॉमस एडिसन की बात करें, तो इन सभी लोगों ने उस चीज की कल्पना की थी जो असंभव सी लगती थी दुनिया को, लेकिन आज उन्होंने वो चीज को संभव करके दिखाया है। तो सपना वही होता है जो आज वर्तमान में असंभव सा दिखाई दे रहा है, लेकिन कल आपके पास ये जरूर से पहुंच जाएगा। ड्रीम इट देन मेक इट हैपन, राइट। ड्रीम इट यानी कि सपने को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो और उसको पूरा करो, ठीक है। ड्रीम इट एंड डू इट, ड्रीम इट एंड डू इट। देखते जाओ और पूरे करते जाओ, देखते जाओ और पूरे करते जाओ। इन चीजों को पूरा करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, और इस चीज के लिए आपने अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो मेरी लास्ट स्लाइड देख रहे थे, वहां पे मैंने बोला था वर्क ऑन योरसेल्फ, लेकिन यहाँ पे जो आप मेरी दूसरी स्लाइड देख रहे हैं, इसमें कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आपको ये काम करने हैं। अब आपका ड्रीम बन गया, अब आपको ये काम करने होंगे। ये काम करना कई लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन इनके बिना सक्सेस आना भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज है बुक्स, किताबें। वाजपेयी जी कहते थे, हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, राइट, उनका कहना यह था कि किताबों से अच्छे दोस्त कोई नहीं हो सकते, जो आपकी हर उम्र में आपके साथ रहते हैं। और किताबें पढ़ पढ़ के लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है, राइट। किताबों से लोगों को शक्ति मिली है, इंस्पिरेशन मिली है, उन्हें वो पता चला है कि कहाँ पे वो गलतियां कर रहे थे, और उन्हें वो सीखने को मिला कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं और इन चीजों से हम सीख सकते हैं। तो बुक्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जैसे शिव खेड़ा जी हैं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने किताब लिखी हुई है, जीत आपकी, सवाल ही जवाब है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। ऐसी बहुत सारी किताबें, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमीर बनना अमीर के हाथ में नहीं बल्कि गरीब के हाथ में भी है, राइट। हर इंसान जो अपनी सोच को बदल लेता है वो अपनी तकदीर को बदल लेता है, और सोच बदलने में आपकी बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, सीडीज हैं, ठीक है, जिनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी लाइफ में चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद की राह को नहीं छोड़ा, और वो लगातार निरंतर प्रयास करते रहे, और आज वो सफलता में है। इन सफलता में ले जाने के लिए आपको मीटिंग्स मदद करती है। आप किसी नए आदमी को जब समझाते हैं तो उसे लगता है कि ये 1-to-1 बैठे हैं, लेकिन जब उसको एक बड़ी मीटिंग में लेके जाते हैं तो उसे पता चलता है कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। तो मीटिंग्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपके इस बिजनेस में, आपको आगे बढ़ाने में। जब आप मीटिंग्स में नहीं होते तो कई बार आपको लगता है कि ये बिजनेस वर्कआउट नहीं कर रहा। जैसे ही आप मीटिंग में पहुंचते हैं, आप अपने आप को मोटिवेटेड पाते हैं और आपको लगता है कि यार यहाँ पे आके तो मुझे बहुत ही अच्छा और बेहतर फील हो रहा है। तो जितनी ज्यादा मीटिंग्स में आप अटेंड करेंगे आपको बेहतर फील होगा, जितनी ज्यादा मीटिंग्स आप अपनी टीम के लोगों को अटेंड करवाएंगे उतना ज्यादा उनको बेहतर फील होगा। और जितनी मीटिंग्स अटेंड खुद करेंगे और अपनी टीम को करवाते रहेंगे तो वहां पे होगा क्या, सबसे ज्यादा ये होगा कि आपके बिजनेस से ये लोग जुड़े रहेंगे, और जब आपके बिजनेस से लोग जुड़े रहेंगे तो आपका संख्या बल बढ़ने वाला है, आपका पीवी बढ़ने वाला है, आपका बोनस बढ़ने वाला है, और जब आपका बोनस बढ़ेगा तो आपके वो सारे सपने पूरे होंगे मेरे दोस्त जो आप इस लेके आए हैं। दूसरा, इसमें बड़े बड़े इवेंट्स जो होते हैं उसमें जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मीटिंग हो सकता है 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, जिसमें एक आई ओपनर आपको मिला, लेकिन इस बिजनेस की बड़ी पिक्चर आपको देखनी है तो इसके लिए बड़े इवेंट्स में जाना जरूरी है।
बड़े इवेंट्स जैसे हमारी फुल डे वर्कशॉप होती है, बड़े इवेंट जैसे हमारे वीकेंड कैंप्स होते हैं, बड़े इवेंट्स जैसे कि अभी हमारा एक रिसेंटली हमने खत्म किया था जयपुर में 2 नाइट 3 दिन का हमारा एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। और इसी तरह का एक प्रोग्राम हमारा 6 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक होने वाला है गोवा के अंदर। गोवा एक ड्रीम डेस्टिनेशन है जो हर आदमी जाना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से उसके पास साधन नहीं होने की वजह से, वजह नहीं होने की वजह से वो नहीं जा पाता। हम आपको यहाँ पे क्यों बुलाते हैं, इन अच्छे होटलों में क्यों रुकवाते हैं, क्योंकि आप इनमें पैर रखने की हिम्मत करें, वो लग्जरी को फील करें, वो अमीर लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं उस जिंदगी को आप फील करें और उसको टारगेट ले कि आज मैं आया हूं लेकिन अगली बार मैं अपनी बीवी को लेके आऊंगा, अगली बार अपने बेटे को लेके आऊंगा, अगली बार अपने माँ बाप को लेके आऊंगा। क्योंकि जब आप एरोप्लेन से फ्लाई करते हैं तो आपका एक सपना पूरा होता है। तो ये सारे इवेंट्स जितने भी हैं यहाँ पर इस तरह की चीजें आपको मिलती है। दूसरा, आपको ट्रेनिंग्स मिलती है, आपके माइंड को शार्प किया जाता है। कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी से अगर पेड़ काटते रहो तो एक समय के बाद वो कुल्हाड़ी पेड़ काटना बंद कर देती है, लेकिन कुछ समय रुक के उसमें धार लगाओ और फिर से कुल्हाड़ी काटने से पेड़ काटना शुरू करो तो पेड़ धनाधन कटते जाएंगे और इनकम में बढ़ोतरी होगी। उसी प्रकार से आपकी जो नॉलेज है उसको शार्पन करने के लिए क्या जरूरी है, मीटिंग्स जरूरी है, ट्रेनिंग्स जरूरी है, इवेंट्स जरूरी है। तो ये इवेंट में आने के बाद में एक आदमी ये तो डिसीजन ले लेता है कि अगले 5 साल कुछ भी हो जाए मैं इस बिजनेस से बाहर जाने वाला नहीं हूं, मेरे सारे सपने यहां से पूरे होने वाले हैं। तो ये जितने भी आप रेजिडेंशियल इवेंट देखते हैं इसमें आपको एक फील दिया जाता है, कंफर्ट दिया जाता है, एक विश्वास दिया जाता है कि ये सब आपके लिए बना हुआ है और आप इनको आगे बढ़ के हासिल करिए। और इसीलिए हम लोग आपको अच्छी अच्छी जगह लेके जाते हैं ताकि आप कनेक्टेड रहें। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो आपने अपने आप से कमिट करनी है। आज से और अभी से बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। बुक्स पढ़ने का बेटर टाइम है रात को आप आधा घंटा निकाल लीजिए, या सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, 5 बजे उठिए और आधा घंटा निकाल लीजिए। क्योंकि रात को अगर आप पढ़ के सोते हैं तो आपका माइंड टर्न करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और आपको लगता है कि मुझसे ये गलती हुई थी और कल सुबह उठ के मैं ये काम को इस तरह से सही कर लूंगा तो मेरा काम सफल हो जाता है। वो आपके माइंड को टर्न करता है और वो बता देता है माइंड को कि ये काम को ऐसे करना है और माइंड तथास्तु करता है। जैसे मैंने कहा इसमें जो चीज डालोगे वैसा ही दिखेगा, इसमें सही डालोगे सही होगा, इसमें बुरा डालोगे बुरा होगा। इसी माइंड से प्रेरणा लेके कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है और इसी चीज से इंस्पिरेशन लेके कोई आदमी आतंकवादी भी बनता है, राइट। कोई आदमी सॉरी कहते हैं ना क्रिमिनल भी बनता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसमें डाल क्या रहे हैं। किताबें सोचो और अमीर हो जाओ, ठीक है। और 3 इडियट्स में आमिर खान जी ने कहा था कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आएगी, राइट। कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, यानी कि ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहो, इवेंट्स में जाते रहो, बड़े लोगों के बीच में बैठे रहो, सीखते रहो। कामयाबी आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। 100% प्रोडक्ट यूज, यानी कि जितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं, आज कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर कोई नया प्रोडक्ट आया तो उसको रिप्लेस करते हैं। यानी कि अगर क्वालिफिकेशन 1000 पीवी है तो 1000 पीवी करने का ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ 1000 पीवी के ही प्रोडक्ट आएंगे। नहीं, हम एक लॉयल कंज्यूमर बनने चाहिए। और लॉयल कंज्यूमर का परिभाषा क्या होता है? परिभाषा ये होता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट बाहर की कंपनी का नहीं लेके आएगा, लाला की दुकान से नहीं लेके आएगा। क्योंकि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बाहर की कंपनी का लेके आ रहा है, लाला की दुकान से लेके आ रहा है, तो ध्यान रखिए वो लखपति करोड़पति लाला को बनाने वाला है, अपने आप को नहीं बनाने वाला। तो अपने आप को अगर लखपति करोड़पति बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले खुद अपने प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को यूज कराएंगे। अगर आप अपने ही घर में सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग, तो दावे से कह सकता हूं आपके घर में ही 5000 पीवी का प्रोडक्ट आराम से कंज्यूम हो सकता है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा कंज्यूम करें। वेलकम टू द फ्यूचर ट्रेंड, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। आज अगर आप देखें जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में क्या है? अमेजोन क्या बोलता है? आपकी दुकान। तो डीएसएनबी क्या बोलता है? ये भी आपकी दुकान है। तो आपकी दुकान में क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका कंज्यूमर बनाना है और उनको एम्पावर करना है ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक अच्छा खासा जिंदगी बिता सके। एक लिस्ट तैयार करनी है। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों के लिए ये नई चीज भी होगी। और लिस्ट क्या है? उस लिस्ट में बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकते हैं,
पड़ोसी हो सकते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं डेली बेसिस पे, कोई डॉक्टर से मिल रहे हैं, किसी सीए से मिल रहे हैं, किसी लॉयर से मिल रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, राइट। यानी कि बस स्टॉप पे खड़े हैं, कोई आदमी हमारे साथ में खड़ा है, तो वो भी हमारा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने का हमारा एक माध्यम बन सकता है। कोई भी नया आदमी जो हमारे साथ ट्रेन में ट्रैवल करता है, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जहां पर भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में है, ये सारी हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो हमने करना क्या, इस बिजनेस में जुड़ने के बाद ये किताबें, जितनी भी चीजें आपको सिखाई गई है, इसके बाद एक लिस्ट तैयार करेंगे और इस लिस्ट में सबके नाम लिखने हैं। अपने आप से एजम्पशन ये नहीं लगाना है कि इसका नाम लिखूं या नहीं लिखूं। आप सबके नाम लिखिए और सबके नाम लिखने के बाद में इन लोगों को आपने कांटेक्ट करना है और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, ये बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताना है, इन प्रोडक्ट को खा के क्या फायदे होते हैं, कैसे स्वास्थ्य मजबूत होता है उसके बारे में बताना है, और किस प्रकार से आर्थिक आजादी, यानी कि आर्थिक तंगी से आर्थिक आजादी, एक पार्ट टाइम करने का, बिजनेस करने का अवसर, एक आपका खुद का बिजनेस करने का अवसर आपको दिया जा रहा है। ये सारी बातें आप उनको बना सकते हैं और इस बिजनेस में ला सकते हैं, इस बिजनेस में कंज्यूमर बना सकते हैं और इस बिजनेस में उनको एक बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं। इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें आप फोन कॉल पे भी बात कर सकते हैं, और फोन कॉल पे जब बात करें तो ध्यान रखिए ये शॉर्ट में होना चाहिए, लंबे में नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी जो बात है 2 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए, और जब आप बात को क्लोज करें तो एक क्लाइमैक्स, एक सस्पेंस होना चाहिए। उस आदमी को लगना चाहिए कि इसने जो बात कही है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो शायद मेरा नुकसान हो सकता है। आप लोगों को कॉफी पे बुला सकते हैं या आप लोगों के घर पे जाके उनके साथ कॉफी पी सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है इनवाइट एंड कांटेक्ट का। आप जब लोगों से मिल रहे हैं तो उनको प्लान दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से आपके एक्शन शुरू हो गए, अभी तक जितने थे ये आपकी कमिटमेंट थी, अब यहां से आपके एक्शन शुरू होते हैं कि आपको प्लान दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये प्लान कितने दिखाना जरूरी है, ये प्लान दिन में 10 भी दिखाएं तो कम है, क्योंकि आपको अगर अपनी सफलता जल्दी चाहिए तो इसके लिए आपको बेहतर प्रयास करने होंगे, लगातार प्रयास करने होंगे, बार बार प्रयास करने होंगे। तो इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखा सकते हैं, प्लान दिखाने की कोशिश करिए, बताइए उनको क्या है। ये लिस्ट तैयार हो गई और लिस्ट तैयार होने के बाद में सब लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। गेट स्टार्टेड, पेस मीटिंग, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, ये और डेप्थ ड्राइव, ये हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी है और सिखानी है। देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बिजनेस करते समय अपने पास में एक कोई भी एक छोटा सा स्पेस लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक कहते हैं ना परचून की दुकान भी खोलते हैं तो उसके लिए भी आप एक छोटा सा स्पेस क्रिएट करते हैं। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने घर के अंदर एक छोटा सा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आप 5-10 कुर्सियां लगाइए, साथ में क्या करिए, दीवार पे एक बोर्ड लगाइए और कुछ प्रोडक्ट साइड में रखिए एक डिस्प्ले बना के। और यहाँ पे आपको रेगुलर अपनी टीम को बुलाना है, यानी कि जिनको आप न्यू इनवाइटेड कर रहे हो उनको आप डेली बुलाइए, आपके घर पे बुलाइए और वहां पे प्लान दिखाइए, वहां पे प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए और प्रोडक्ट का टेस्ट कराइए, फील गुड फैक्टर कराइए। और साथ ही साथ हर हफ्ते, हर हफ्ते यानी कि वीकली आपकी आपकी टीम के साथ मीटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहां पे बहुत सारी बातें आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि जितने भी लोग आए उनको बताइए ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से काम करता है, ये सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है, और उनको एक कॉन्फिडेंस दीजिए। वो कॉन्फिडेंस क्या दीजिए कि आप एक पर्ची डालिए बाउल के अंदर और उस पर्ची में लिखिए अलग अलग प्रोडक्ट के नाम, अलग अलग कंपनी के जो बिजनेस प्लान है उनके कंपोनेंट के नाम, और जिसके नाम पे जो पर्ची निकलती है उसको बोलिए कि आके 5 मिनट आपने खड़े होकर यहाँ पे बोलना है। जब आदमी बोलना शुरू करता है तो उसका कॉन्फिडेंस आता है उस प्रोडक्ट के ऊपर बात करने में, बिजनेस प्लान के कंपोनेंट पे कॉन्फिडेंस आता है कि वो किस तरह से बात कर सकता है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ आज वो 5 लोगों के साथ बात कर रहा है, कल वो 500 लोगों के साथ बात करेगा। और जब एक एक आदमी प्रोडक्ट के ऊपर बात करता है तो सारे प्रोडक्ट्स की उसको ट्रेनिंग मिल जाती है, एजुकेशन मिल जाती है। डेप्थ ड्राइव क्या है, ये आपको करना क्या है, जब आप नीचे नीचे देखेंगे कि कोई आदमी, मान लीजिए आपका फर्स्ट काम नहीं कर रहा है, सेकंड काम नहीं कर रहा है, लेकिन तीसरा आदमी आपका काम कर रहा है, तो उसको आपने पकड़ के उसके साथ बैठ के काम करना है। दिस इज कॉल्ड डेप्थ ड्राइव, जो मैं अगली मीटिंग में आपके साथ धीरे धीरे और बातचीत करूंगा। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मैं अगले 5 से 7 मिनट लूंगा और आपके, तो 5 से 7 मिनट इस मीटिंग में बने रहिएगा। काउंसलिंग विद अपलाइन, यानी कि एक कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन आपका कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जहां पे कम्युनिकेशन गैप आता है वहीं पे क्रैश हो जाता है, राइट। आपने देखा होगा हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज एटीसी के कंट्रोल में होता है। अगर एटीसी और पायलट का संपर्क टूट जाए तो प्लेन कहां से कहां पहुंच जाएगा आपको भी पता है, तो वो अपनी दिशा भटक जाएगा। उसी प्रकार से अगर
आप कम्युनिकेशन में रहते हैं आपकी अपलाइन से, तो आपका सिस्टम सही तरह से बना रहता है और आपने जहां से स्टार्ट किया, जहां पहुंचना है वहां पे भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो समय समय पे आप अपनी अपलाइन से कम्युनिकेशन करते रहिए, वीकली बैठिए, 15 दिन में एक बार बैठिए, जो भी चैलेंजेस आप आते हैं उनको आप सुलझाइए और समझाइए। और मैं अपलाइन से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी जितनी भी डाउनलाइन है उसके साथ एक वीकली मीटिंग जरूर करें, राइट। और अभी तो देखिए जूम एक ऐसा बेहतर जरिया हमारे पास में आ गया है जहां पे हम किसी भी शहर में बैठे हो लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं दिल्ली में बैठा हूं और आप लोग अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैं सारी बातें आपके साथ कर सकता हूं। तो जूम का भी आप इसमें सहायता ले सकते हैं। सबमिशन टू योर अपलाइन, अगर अपलाइन के सबमिशन में रहोगे तो अपलाइन आपकी नैया पार लगा देगा, ये जान के चलिए। अपलाइन को रिस्पेक्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो माँ बाप को कैसा लगता है ये आप सोच के देखिए। आज अगर आप किसी के बेटे हैं तो कल किसी के माँ बाप भी बनेंगे, तो जो चीज आज आप कर रहे हैं वो चीज कल आपके साथ होगी तो आपको कैसा महसूस होगा। तो इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए अपलाइन को, क्योंकि वो आपको इस बिजनेस में लेके आया, उसने एक रास्ता दिखाने का आपको कोशिश किया। और भी इसमें बातें करेंगे, जब हम नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। अकाउंटेबिलिटी आपका होना चाहिए, यानी कि बिजनेस में आप अकाउंटेबिलिटी रखिए, एक किताब रखिए अपने पास, एक नोटबुक रखिए या एक एक्सेल शीट रखिए अपने लैपटॉप में, जहां पे आपकी टीम में कौन कौन आदमी कितने कितने पीवी कर रहा है, या आप सिस्टम से देखिए और उनके साथ लगातार संपर्क में बने रहिए और उनको समय समय पे चैलेंज करिए कि भैया 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज आप चैलेंज लीजिए कि अगले 90 दिनों में आप स्टार एजेंट बनेंगे, अगले 90 दिनों में आप स्टार रूबी बनेंगे, अगले 90 दिनों में आप स्टार डायमंड बनेंगे। इस तरह के छोटे छोटे, यानी कि ये नहीं कि 1 लाख रुपया सीधा इनकम आपको मिल जाएगी, नहीं, आप उसको पहले सिखाइए कि इसमें बिजनेस में अगले 90 दिनों में 20 से 25 हजार कैसे आएंगे, फिर उसके अगले 90 दिनों में ये जो 20 से 25 हजार आए हैं ये 50 हजार कैसे होंगे। जब आप धीरे धीरे बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में तब्दील कर देंगे तो हर आदमी इसको इजीली कर लेगा। एक बड़ा पहाड़ तोड़ना आज मुश्किल लगता है, लेकिन आप बताओ कि इसमें से छोटे छोटे टुकड़े यहां से करते जाओ तो हर आदमी आसानी से कर लेता है। तो अकाउंटेबिलिटी करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पर्सनल डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। एंड एक और लास्ट स्टेप, लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेबल। ये तीन चीजें आपके इस बिजनेस में आपकी मदद करती है। पहली चीज लर्नेबल, इफ यू आर ए लर्नेबल तो आप सीखेंगे, तो अपने आप को हमेशा सिखाने वाले मोड में मत रखिए। बहुत सारे लोग टीचेबल मोड में चले जाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को लर्नेबल, यानी कि आप सीखिए, लगातार सीखते रहिए, और जब आप सीखेंगे तो आप सिखा पाएंगे, और जब आप सीखेंगे सिखा पाएंगे तो आप डुप्लीकेट अच्छे से करवा पाएंगे। तो ये तीन चीजें हैं जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में हमारी मदद करती है। पहली चीज लर्नेबल, यानी कि जितनी मीटिंग, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स है ये हमें छोड़ने नहीं है, और वहां से जो सीख के आ रहा हूं तुरंत अपनी टीम को बताऊं कि तुम्हें ये करना है, और उनको बोलूं कि तुम भी अपनी टीम में ये बताना शुरू कर दो, तो ये हो गया डुप्लीकेबल। तो लर्नेबल, टीचेबल एंड डुप्लीकेबल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके आगे और भी बहुत सारी स्लाइड्स है जिनके ऊपर हम लोग बात करना चाहेंगे, लेकिन समय सीमा हमें इजाजत नहीं देती कि हम इससे आगे बढ़े। अगला हम लोग और सीक्वेंस रखेंगे और हम लोग बातें करेंगे, अगली मीटिंग में बातें करेंगे इसके आगे और क्या क्या होगा, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं, जो ये 10 हमारे बेसिक स्टेप्स हैं, इनको अगर आप लगातार करते हैं, आपकी टीम से लगातार करवाते हैं, डेली करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं ना, मुझे एक आदत है हनुमान चालीसा पढ़ने की, भगवान की भक्ति करने की, सुबह उठते के साथ नहा धो के भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। एक महिला जो होती है उसे पता होता है कि उसे अपने बच्चों को भेजना है स्कूल, तो वो भी जल्दी उठ के ये काम करती है। तो हमें पूरे दिन में ये काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि हर तरह से हर चीज का हमें पता होता है कि इस काम को करने के ये फायदे हैं। उसी प्रकार से इन कामों को भी हमें डेली करना जरूरी है, कभी कभी करना नहीं है, डेली करना जरूरी है। जितनी भी चीजें बताई हैं इनको डेली करते जाइए, डेली करते जाइए। एक साल, अगले 365 दिन इसको लगातार करिए, डेली करते रहिए, देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। और कहीं ना कहीं वो जो परिवर्तन आएगा वो आपको मोटिवेट करेगा और बड़े सपने देखने के लिए और बड़े ड्रीम्स बनाने के लिए। तो दोस्तों, मैं इस प्रेजेंटेशन को यही रोकना पसंद करूंगा। अगली मीटिंग में हम दोबारा मिलेंगे, पार्ट 2 करेंगे, राइट। और बहुत सारी बातें हम लोग आप लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि सीखना सिखाने का ये जो दौर है ये चलता रहेगा। और लोगों को बताइएगा कि आज उन्होंने क्या मिस किया, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा तभी वो दूसरी मीटिंग में आएंगे, राइट। तो जो हमारा सीक्वेंस होगा उसमें वो आएंगे। तो सीक्वेंस में बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करते जाऊंगा, और लक्ष्मी जी की कृपा आप पे बनी रहे, आपके घर में लक्ष्मी जी रहे हमेशा, और दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट।
थैंक यू वेद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह का प्रोग्राम हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमेशा होता रहे, आपकी तरफ से हमें भी मिलता रहे। और हमारे दर्शक आज बहुत कुछ जाने होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अपना ये जो लर्निंग है, इस लर्निंग को जा करके आप फील्ड में ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले मीटिंग सेशन में। तब तक के लिए आप हमें ज़रूर इजाज़त दीजिए और लग जाइए काम पे। अक्टूबर में अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। आज का दिन तो वैसे भी खत्म हो रहा है, एक दिन मान के चले कि बचे हुए हैं। और दिवाली भी है साथ में, तो विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।